Hello everyone and welcome to the channel of Sambhav Law. In today's session, we have with us Shayank, who has secured a very good position inside of the NISM LLM examination of 2026. And today he is here to share his strategy as to how he cleared the paper, how was the pattern, how did the interview go, and he will be telling us his strategy as to how, if you are planning for the 2027 examination, how you can crack that. So, firstly, Shayank, I would welcome you to the channel and please also introduce yourself to the audience as well, please. First of all, sir, I would like to express my gratitude to you for giving me this opportunity and inviting me for the interview on this platform. Uh, uh, my name is Saint Pujale and I have completed my LLB from Babasaheb Ambedkar School of Law, Nagpur. What drives me into choosing NISM is that it is a niche course. Not many colleges in India provide for specialization in investment and security laws. To the best of my knowledge, I only know few Yeah. colleges which gives Mhm. specialization in investment and security laws. The second thing uh, which drives me into choosing NISM is the placement. The placement of NISM is better than, or I cannot say that it is better, but it is uh, Sort of comparable. I can compare it to the top tier law colleges in India. Yeah, It sure. gives a Hmm. good placement. Yeah. Uh, that is the reason I Uh, choose to mm, take admission I in see. NISM. I think that is a really good thing. Actually, I think so that NISM is one of those colleges in India that are like the last beacon of hopes that basically a person can think of after doing a graduation. And because the first thing what happens is that you have given your CLAT UG examination, and the narrative that we have inside of India is that if your CLAT UG does not go well, there is very hard to have a placement anywhere. So accordingly, this is the one course where any student from a private college, from a state government university or any university, central university, can go ahead and get a placement, at least secure a job. That is one thing. So Shank, coming to my first question for the interview, so आप मुझे थोड़ा सा ये बता सकते हैं, like in the sense of the पेपर पैटर्न कैसा था, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी क्या थी, क्या क्या क्वेश्चंस आए, थोड़ा अगर आप रिकॉल करा पाए थोड़ा सा. So basically, there are five subjects in this. If you're giving this paper, there are basically five subjects. First is the company law. Second is contract. Third is constitution. Fourth is jurisprudence, and the fifth is current affairs. The Hmm. majority of the questions come from company law and contract. If you do company law and contract very well, you can qualify it quite. You can qualify it if you have done two subjects thoroughly. Uh, I cannot recall the questions, to be honest. I cannot recall it, but I can recall the topics from where the Hmm. questions have came. Uh, Hmm. for example, if I can recall from the company law, there were questions like types of shares, types of shares, then the powers of directors, removal of directors. Then two, three questions were from debentures, then prospectus, promoters of the company. These are the questions relating to the Company company law. law. Hmm. Apart from it, from the constitution, they basically focused on doctrines, like doctrine of colorable legislation, doctrine of fifth and substance was question was there. Then doctrine of separation of powers. I can recall this questions came. Apart from them, they asked specifically questions from case laws also. Hmm. I don't remember the case laws, but there were questions from case laws also. Hmm. Like case Puttaswamy case was there. From contract law, there were difference between bail and pledge and bailment, and there were questions like contract of indemnity, contract of guarantee. Uh, then from jurisprudence, they asked regarding the analytical school. Then John Austin's command theory. Then Hmm. uh, John Austin's command theory does, then Kelson's pure Kelson's pure law theory does. Then Hmm. apart from them, they basically focus on schools of jurisprudence like Discourse jurisprudence generally. sociological school, Hmm. analytical school. They Hmm. focus Hmm. on these topics. I And see. current affairs I don't recall because they were I Like can't recall current affairs bad, questions, but yeah. Matlab but bad. I can recall just one question. I can recall that who won the Nobel Peace Prize in 2025. Okay, This okay, question okay. I recall this I see. because So, they did not specifically ask about security laws. मतलब current affairs specifically उन्होंने security laws के नहीं पूछे.
उन्होंने करंट अफेयर्स कहीं से भी मतलब ओवरऑल पूछा जनरल नॉलेज के हिसाब से। ओके, जनरल नॉलेज के हिसाब से, मतलब इन लोग का ये पैटर्न था हाँ, कि कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यही पढ़ के जाएंगे फिक्स नहीं करंट था। अफेयर्स में, तो फिर उसके हिसाब नहीं, से ये होगा। क्योंकि ऐसे। नोबल प्राइज का भी आया था, और मेरे हिसाब से एक फाइनेंस फाइनेंस बिल का भी एक क्वेश्चन आया था। जो इस साल का हम्म। फाइनेंस सेक्टर था ना, उससे भी एक क्वेश्चन आया था। अच्छा 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 अच्छा। तो भाई मिला जुला के मतलब हम कह सकते हैं क्वेश्चन उन्होंने पूछे अपने, ठीक है ठीक है। अच्छा, लाइक अब इसके बाद शायद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन था, क्योंकि जैसे मान लीजिए 4 सब्जेक्ट्स ये हो गए, 5 और आपके करंट अफेयर्स वगैरह, ये आपने कैसे प्रिपेयर करा, क्या टाइमलाइन थी, मतलब किस सब कब से प्रिपेयर करना चालू करा, क्या सोर्सेज वगैरह यूज करे, कुछ उस बारे में अगर आप बताएं प्लीज। प्रिपरेशन तो मैंने संभव लॉ से ही किया था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर आपका वो कंप्लीट एलएलएम का कोर्स लिया था, उससे मैंने संभव लॉ से किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मुझे आदत है कि मैं खुद के हाथ से ही नोट्स बनाता हूँ। हाँ जी। मतलब मैं कितना भी पढ़ूंगा, मैं कितने भी पढ़ूंगा, मेरे को आदत है कि मैं खुद के हाथ से ही नोट्स बनाऊंगा। तो वो नोट्स से मेरे मतलब पहले के नोट्स रखे थे, उससे फिर मैंने रिवाइज किया। अपार्ट यप। फ्रॉम दैट, जैसे मुझे मुझे लग रहा था कि स्पेसिफिकली वो लॉ के रिलेटेड ही करंट अफेयर्स पूछेंगे, तो उसके लिए मैंने लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच को रेफर किया था साइट्स हम्म में। हम्म। इतना किया था सर मैंने। आई सी आई सी। और बाकी जैसे बात करते हैं कि अब मान लीजिए इंटरव्यू पे हम लोग आते हैं शायद, तो बेसिकली जो हाँ सर, एनआईएसएम का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो वहाँ का इंटरव्यू है, वो बिकॉज इंटरव्यू समझ में ये नहीं आता कि क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, पेपर प्रिपरेशन निकाल लेते कैसे हैं, करें। लेकिन पेपर पेपर निकल जाता है, लेकिन इंटरव्यू। इंटरव्यू नहीं निकलता है। वो दिक्कत है। हाँ। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा गया था, क्या क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा वो बताइए प्लीज। So, there were panel of three. There were panel of three members. There were three professors in my interview. बेसिकली वो सबसे पहले पूछेंगे कि गिव मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. हम्म I have to give my introduction. Then they will ask कि choose any two domain subjects. You can हम्म। choose either of the five domain subjects. You have to choose any two domain subjects. मैंने चूज किया था कॉन्स्टिट्यूशन और कंपनी लॉ. ठीक है। जैसे मैंने राघव का भी इंटरव्यू देखा, राघव ने चूज किया था, राघव को मोस्टली क्वेश्चंस पूछे उन्होंने कंपनी लॉ से. हम्म। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मुझे उन्होंने मोस्टली क्वेश्चंस पूछे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मेरा डोमेन सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर मैंने कंपनी लॉ बोला था. तो उन्होंने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल हम्म। 21, एंड विच वाज द केस रिफर्ड, मनिका गांधी केस, तो उनका विच वाज द गांधी। केस रिफर्ड इन इट. हाँ। फिर सेकंड उन्होंने मुझे पूछा था कि अंडर आर्टिकल 14 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्विटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी लॉ व्हाट इज का। द डिफरेंस बिटवीन दैट. थर्ड उन्होंने मुझे पूछा था कि अ, अगर फंडामेंटल राइट्स, अगर जब इमरजेंसी रहती है फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते, तो सस्पेंड हो कौन से जाएगा। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं. ये पूछा था. फिर उन्होंने हम्म। पूछा था मुझसे कि अ, मुझे एक बार पूछा था उन्होंने कि जैसे आपको पता है कि आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एनीमोर. अभी वो हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है. तो उन्होंने पहले हम्म। मुझे पूछा कि है कि नहीं है, मतलब है कि पहले नहीं पूछा है। कि मेरे को पता है कि नहीं. फिर जब मैंने बोला कि इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन से सेक्शन में, जैसे थ्री सेक्शन में, हंड्रेड ए आर्टिकल कौन से आर्टिकल आर्टिकल, 300 में, हाँ कौन से दिया आर्टिकल हुआ में है। है, हाँ हाँ 300 में. तो हाँ। ये तो पता है, बोलते इसका इवोल्यूशन क्यों हुआ वो बताओ, और वो बताओ। कौन से ईयर में हुआ, कौन सा ईयर में अमेंडमेंट हुआ। हुआ. हाँ हाँ, ईयर और हाँ अमेंडमेंट बताओ. ये हाँ हुआ था हाँ। सर. फिर ऐसी बेसिक, और फिर मेरे को आखिरी में अ, रिट्स रिट्स पूछे थे. अंडर आर्टिकल 32 कौन से रिट्स रहेंगे, और रहेंगे। मतलब ऐसे वो सब पूछा. हाँ. मतलब जो क्वेश्चन से कितने, मतलब वो वाले जो क्वेश्चन है ट्रिक क्वेश्चन जो होते हैं, है ना। हाँ, मतलब सर ड्यू। उसके अलावा मतलब ड्यूल। बता रहा था, जैसे डिफरेंस हाँ पूछ लिया था मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्शरी, क्यू वारंटो, सबका डिफरेंस हाँ, बताओ, सबको और सबका पूछा दो। मीनिंग क्या क्या रहता है. वो तेरी। वो था. तो मतलब ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बस क्वेश्चन ये होता है कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड की चीज है कि अगर जैसे सर वो बहुत दे माइन्यूट दे से डोंट चेक डिफरेंस है दोनों में, दे डोंट टेक वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक दे करता डोंट है। चेक योर मेमोराइजेशन, दे जस्ट चेक दैट डू यू हैव द नॉलेज. उनको कंसेप्ट हाँ, क्लियर है, कि दे डोंट कंसेप्ट चेक क्लियर है कि कि तुमको नहीं, सही मेमोराइज. बात है। वो चीज है। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे हाँ आप बताइए बताइए जी। सर जैसे मेरा पहला हुआ, फिर उसके बाद मतलब मेरे साथ तीन प्रोफेसर थे. तो पहले प्रोफेसर ने मुझे ये पूछा, सेकंड प्रोफेसर ने कैसा हुआ, सर जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं, उसके अंदर यू हैव टू राइट अबाउट योर प्रोफेशनल हाँ एक्सपीरियंस. हाँ हाँ। तो सर मेरा 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे हम्म मैंने 2 साल पढ़ाया हुआ है. तो उसके अंदर मैंने लिखा कि यार मैंने पॉलिटी पढ़ा है, मैंने हिस्ट्री पढ़ा है. अब मुझे वो नहीं पता कि उन्होंने वहां से पूछा क्या, लेकिन मैंने वो ये किया. तो उन्होंने मेरे को सेकंड क्वेश्चन में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, उसका आंसर मैं दे भी नहीं पाया. उन्होंने मेरे को सेकंड क्वेश्चन पूछा कि आप नागपुर से हो, तो मुझे बताइए कि व्हाट वाज द रोल ऑफ नागपुर इन द फ्रीडम स्ट्रगल. तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि लॉ के इंटरव्यू में मेरे को ये क्वेश्चन पूछ तुम लेंगे. पूछेंगे। तो हाँ, तो मुझे ये पूछा कि फ्रीडम स्ट्रगल में नागपुर का क्या रोल है, तो मैं कुछ भी आंसर दे रहा था. और मेरे को बाद में समझा कि वो 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
जो हाँ। कांग्रेस सेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, ये मेरे को पता था आंसर, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो मैं पैनिक हो गया। और मैंने बोला भी कि सर मैं थोड़ा नर्वस हो गया, मैं आंसर नहीं दे पाया। फिर थर्ड थर्ड पैनल है, उन्होंने मेरे को कंपनी लॉ से रिलेटेड पूछे क्वेश्चन, जैसे हम्म। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या रहेगा। हम्म। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज आईपीओ, हाँ। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, आईपीओ। फिर शेयर्स क्या रहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या रहती है, सीएसआर क्या रहता है। ये सब मुझे ये क्वेश्चन उन्होंने पूछे। और उन्होंने एक और मुझे पूछा कि आपका तो यू हैव इंटरेस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड यू वांट टू टेक एडमिशन इन कॉर्पोरेट, जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट तो इसके अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, और आपको एनआईएसएम क्यों चूज करना है, ऐसा करके सर फिर मेरा 10 मिनट का इंटरव्यू था, फिर उन्होंने समअप किया। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आपने बेसिकली क्या चूज किया कि मतलब सर क्या? वो सर मैंने ऑन स्पॉट मेरे को जो समझा मैंने वो दिया, बट मैंने वही बोला कि क्योंकि सर मैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन। आई हम्म। वॉज हम्म। हम्म। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, सो आई डोंट रिकॉल दैट मैंने क्या बोला उनको, बट मैंने कवर कर लिया था बराबर से, मैंने उनको आंसर दिया था। नहीं, वो तो आई इन कांट लोग रिकॉल राइट नाउ कि का। मैंने क्या। नहीं, एनआईएसएम का ये तो पेट क्वेश्चन है कि बॉस ये बताओ कि तुमको चाहिए क्यों। दैट इज द थिंग। क्योंकि जैसे सर अगर मैंने आप क्योंकि उन्होंने मुझे हाँ, वही वही पूछा कि आपका डोमेन सब्जेक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको, आपने बोला कि आपको इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको ये कॉलेज क्यों चाहिए। क्यों चाहिए, वही वो बात सर है, तो वो फिर मैंने, वो। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, आई कांट रिकॉल राइट नाउ, बट तब मैंने कवर कर लिया था, तब मैंने बता दिया था उनका आंसर। हाँ, मतलब जनरली आंसर वही होता है कि हमारा इंटरेस्ट चेंज हो गया या फिर हमको सिक्योरिटीज में अच्छा लगता है, हाँ, समथिंग समथिंग वहाँ के सर मतलब वही देना ही बोल। पड़ता है। वही 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 वो बेस्ट रहता है। अच्छा, इसके बाद अब जैसे मान लीजिए शयंक, अब इसके बाद भाई और भी लोग हैं 2027 में पेपर के लिए टारगेट करेंगे। क्या स्ट्रेटजी आप बताओगे कि क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, क्या कहोगे आप? सर आई वुड लाइक टू एडवाइज देम टू स्टार्ट अर्ली, एटलीस्ट अ मंथ और टू बिफोर द एग्जाम। एकदम टाइम पे मत स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम पे होता नहीं, क्योंकि एज वी नो कंपटीशन थोड़ा सा इसका मतलब डिसेंट, देयर इज अ डिसेंट कंपटीशन। 3 to 4 thousand पीपल पेपर देते हैं, उसके अलावा 250 to 300 लोग इंटरव्यू के सिलेक्ट होते हैं, और एक टाइम तुम पेपर निकाल भी लो, इंटरव्यू तो रहेगा, और आखिरी में सीट से 50 to 52 सीट्स है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 50 to 52 सीट्स ही है वहाँ पे, हम्म। और 4,000 लोग पेपर दे रहे। तो आई वुड से कि फोकस, यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट rather देन जस्ट मेमोराइजिंग द कंसेप्ट। अगर हम्म। आप सिर्फ सिर्फ पढ़ते रहोगे, क्योंकि आप आखिरी में मैंने क्वेश्चंस देखे तो क्वेश्चंस वर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। हम्म। और आप इंटरव्यू भी दोगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो कंसेप्ट वो नहीं देखेंगे कि आपको कितना रटा हुआ है, मेमोराइजेशन नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि आपको कंसेप्ट समझा है क्या। कंसेप्ट समझाए कि ये नहीं, है, तो सही मैं आपसे बात है। बोलूंगा कि आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिए, और एंड फोकस मेजरली ऑन कंपनी लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली अगर आप लॉ कर रहे हो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ठीक ठाक रहेगा ही। तो फोकस ऑन कंपनी लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स इज फ्रॉम कंपनी लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ऐसे। और उसके अलावा जैसे शायद कभी इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपको ये स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं लाइक हु हैव गिवन द पेपर, एनआईएसएम में कई लोगों ने दिया, क्लैट में दिया, सीवीटी में दिया। तो आपके हिसाब से लाइक एक इंपॉर्टेंस होती है ना कि जैसे मान लीजिए, ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक, थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन है ये वाला, कि जैसे मल्टीपल एग्जाम्स देना, बिकॉज मुझे लगता है आपने भी, जब हम लोग की बात वगैरह हुई भी थी, आपने भी मल्टीपल एग्जाम्स की मैंने प्रिपरेशन क्लैट भी करा दिया है। था, क्लैट भी दिया है। तो हाँ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस की, लाइक जैसे आपको अगर तैयारी करनी है तो केवल क्लैट क्यों नहीं, मतलब मल्टीपल एग्जाम्स क्यों देने चाहिए आपके हिसाब से, क्या सही बात रहती है? सर मल्टीपल, क्योंकि सर आप सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे यू कैन तुम आप बैठ ही नहीं सकते हो, क्योंकि सर मैंने क्लैट भी दिया, मैंने आईआईटी खड़गपुर भी दिया। आईआईटी खड़गपुर मेरा नहीं हुआ सर, क्लैट में मेरा हुआ, लेकिन सर मेरे को टॉप टियर एनएलयूज नहीं मिले, मुझे एनएलयू मिल रहे थे, अच्छे ही मिल रहे थे, लेकिन मेरे को टॉप टियर्स नहीं मिल रहे थे सर। हम्म। तो वहाँ पे लोअर जाने का एनएलयू से कोई करके कोई मतलब मेरे मतलब नहीं मतलब होता। नहीं है सर। सही तो बात है, सही बात है। क्योंकि सर इसीलिए अगर आप उतने उतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं सर, आप उतना पैसे डाल रहे हो और फिर पैसे निकल नहीं रहे, मतलब अगर कोई टेक्निकली मैं सेंस नहीं है बात ना। करूँ तो मैं टेक्निकली आप देखिए सेंस भाई, नहीं बनता। 4 लाख 5 लाख रुपीज आपका चला जाएगा। उसके बाद आप डिग्री लेके हाँ निकलोगे भी तो फिर आपको कोई जब आरओआई है ही नहीं, जैसे एनआईएसएम में कुछ भी है, आपका आरओआई 1 साल में निकल के आ जाएगा। आपका पैकेज हाँ इतने सर, का है आराम से, वो प्लेसमेंट। बेसिक 6 से 7 लाख तो एवरेज शुरुआत ही होती है वहां पे बेसिकली। तो वो आ नहीं आना है, तो इसीलिए थोड़ा सा मल्टीपल एग्जाम्स का भी वो रहता है। और फिर एक चीज ये भी होती है ना, कई लोग फेल कर जाते हैं, फिर इसी में एनआईएसएम में हुआ, क्लैट में कई लोगों का निकला नहीं एग्जाम, और दिल बैठ जाता है, अरे सर नहीं निकला, अरे सर नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। उनके लिए क्या एडवाइस है भाई, क्यों मतलब दिल बैठता है, क्यों ना दिल बैठने दे? सर इसका आंसर सर, सर वापस अभी प्रिपरेशन करना चाहिए उसका आंसर में। मतलब वही होता है कि अ, मतलब एक होता है ना कि जैसे मान लीजिए अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब मतलब एक दिल बैठता है, मतलब आप एक होता है ना कि एक थोड़ा सा मतलब एक मोटिवेट करने का पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहोगे किसी बच्चे को? जस्ट जस्ट वर्क हार्ड, क्योंकि एक और बार अगर अपन वापस देंगे, क्योंकि एलएलएम सर मेरे हिसाब से एलएलएम आप एक ही बार करते हो।
ऐसा अगर आप कर रहे हो तो मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज से करने का फायदा रहेगा। अगर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी एनएलयू में हो गया था, लेकिन मेरा थोड़ा नीचे के एनएलयू में हुआ था। मैं कर सकता था एलएलएम, लेकिन फिर मेहनत करके मैंने एक और बार ट्राई किया और थोड़े ऊपर, जैसे अब मेरा एनआईएसएम में हो गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा एनआईएसएम में हो जाएगा, लेकिन फिर मैं एग्जाम देते गया, मैंने आईआईटी खड़गपुर भी दिया, मैंने क्लैट भी दिया। तो ऐसे ही है सर, अगर मतलब मेहनत करोगे तो हो जाएगा। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा अटेम्प्ट देने की कोशिश करो कि एलएलएम, क्योंकि भाई ये कोई एक बार होता है एंड कई लोग ऐसे होते हैं जो कि 3 ईयर रूल की जैसे परेशान है, एलएलएम करने आ रहे हैं, बैकअप भी चाहिए, मतलब 50 चीजें होती है, तो उसमें भी ये होता है कि अब टाइम है तो मैं थोड़ा सा टाइम को अच्छे से अगर आप यूटिलाइज करो तो एक अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस शायद आई होप कि जो सेशन हमारा था इससे काफी लोगों को सीखने को मिलेगा, काफी चीजें हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस करी, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एंड आई वुड फर्स्टली आपको मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा सिलेक्ट होने पर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।